रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट पेस पे मूव करेंगे. व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? एनीवन? हाँ जी, जस्ट यूज द माइक एंड स्पीक. Sir, shape which have angles equal Shapes which have angles equal. and So the sides are proportional. and sides are proportional. Okay. How about these shapes? इसमें तो कोई एंगल्स ही नहीं है और कोई साइड्स ही नहीं है, बट दीज आर सिमिलर है ना, ये भी तो सिमिलर हो सकती हैं. एनीवन एल्स? हाँ जी, रेज योर हैंड. हाँ जी, दैट्स इट क्लास 10th बैच. छोटा सा क्वेश्चन. हाँ जी प्राकृति. Or figures whose shapes are same but their sizes can differ. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. ठीक है, फिगर्स वो शेप्स आर सेम आर सिमिलर फिगर. फिर नेक्स्ट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं देयर साइजेस में डिफर. ठीक है, अगर शेप सेम है देन दे आर सिमिलर फिगर्स. स्मॉल क्वेश्चन, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे प्राइवेटली. टू सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर इवन इफ दे हैव डिफरेंट टिंग 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 टिंग. सर्कल्स की सिमिलैरिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम. राइट योर आंसर एज ABCD. MCQ क्वेश्चन. Very good. Aryan Jangid correct. Aryan Verma wrong. Saransh correct. Prantik correct. Hamita correct. Okay. Second attempt not allowed. Bhai. Second attempt not allowed. Sachit, write just the option. Half of you have done correctly. Half have done wrongly. Okay. So Dhriti it's wrong. Harsh wrong. Anand correct. Sachit wrong. Shreya correct. Riddhi wrong. Okay. So two circles are always similar. ठीक है, टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ठीक है, इफ देयर रेडियस आर डिफरेंट डजंट मैटर, दे आर ऑलवेज सिमिलर. अगर रेडियस डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स सर्कमफ्रेंस विल बी डिफरेंट, एरिया विल बी डिफरेंट, बट सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर. सो माय आंसर शुड बी ऑल ऑफ दिस. टू सर्कल्स आर सिमिलर if they have, even if they have different radius, circumference or area. राइट. तो जिनका गलत हुआ है उनमें से 50% का गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वो पहला रेडियस देखकर जो है दे हैव जस्ट जंप्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस. ठीक है, उन्होंने आगे ऑप्शंस ही नहीं पढ़े, बट ऑप्शंस आर अवेलेबल. ओके, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. सो टू डैश और टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ठीक है, वन वर्ड में आंसर देना है. लेट्स से हु इज आंसरिंग इट फर्स्ट. Impressive, Hamita. Aryan. Anand, it's wrong. Okay, Anand, I'll say it's correct. But okay, खाली आप line बोलेंगे आनंद तो that's wrong है ना. It has to be line segment. At least they have certain sizes there, or it has to be straight line. But only line is wrong. ठीक है. Sphere तो बेटा 3D shape हो गई. Sphere is not allowed. ठीक है, 2D shape में you will say two square or two circles are always similar. Very good, very good. Dhriti correct, Ashmita correct, Sachit correct, Prantik correct. Impressive. Next one. Two dash triangles are always similar. Oh, again, Humita, Kushagra, Aryan Verma, very good. And now too easy question, and now too easy to spend time on this. So two equilateral triangles are always similar. Now this one, two dash polygons are always similar. Very good, Sachit. Lianka not correct, Humita not correct. Saransh not correct. It's Aryan Verma, Sachit, Aryan Verma, Aryan Jangir, Vijaya. Okay. Hanji Uday, answer. Okay, so two regular polygons are always similar, है ना? For figures to be similar, so two regular polygons are always similar. Now big question is what are regular polygon? So regular polygons
Raise your hand. Who is going to define? Ashmita, what are regular polygons? Anand, mic पे आओ. What are regular polygons? Nope. Okay, anyone? Raise your hand. What are regular polygons? Two polygons are said to be regular if it's not. I'll not go with Sachet. If Saransh, two polygons are regular if. Or if all the angles are equal. No, ये rectangle है और ये square है. Are they regular polygons? Angles तो equal है 90 90 90. हाँ जी निश्चय. Sir, if all the angles and the sides are equal. If all the angles and all the corresponding sides are equal, है ना? If corresponding angles and corresponding sides are equal, then they are called. अच्छा, no, regular polygon ना. Regular polygon is if all the angles and all the sides are equal, then they are regular polygon. Sir, हाँ जी. सर फिर तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे. हाँ, congruent हो जाएंगे. So that's what it is saying. Two dash polygons are always similar. So which type of polygons are always similar? So regular polygons जो है वो हमेशा similar होंगे. ठीक है? सर मतलब मैंने इसीलिए कॉन्ग्रुएंट लिखा था मतलब. ना. देखो रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, मान लो आपने 5 साइडेड लिया तो 5 साइडेड ये रेगुलर पॉलीगन हो गया बेटा, पेंटागन. और फिर 5 साइडेड ये पेंटागन हो गया. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना है, बट दे आर सिमिलर. सो टू रेगुलर पॉलीगन्स आर ऑलवेज सिमिलर. और यू विल से टू रेगुलर पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, अब क्लियर है? यस सर. ओके, तो ये बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से. सो व्हाट आर डिफरेंट कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ हाँ जी एनीवन, थोड़ा माइक यूज करो और फटाफट चलते हैं ना. रिवीजन में एक चैप्टर में 2 days मैक्सिमम. सर एंगल एंड साइड. पहला वाला क्या बोला आपने? एंगल एंगल एंड सेकंड वन इज एंड साइड. साइड को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? व्हाट डज इट मीन? साइड्स जो होती है प्रोपोर्शनल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. Impressive, very good. ठीक है, if any of the two angles are equal, then of course third angle will itself become equal. And second one is if ratio of sides are equal. Sir, RHS. Okay, RHS में क्या कहना चाहोगे आप? Sir, एक hypotenuse, right, और एक base या फिर. Okay, so you are saying one angle 90 degree is equal and the ratio of hypotenuse and base is equal, है ना? RHS, okay. ठीक है? SAS is there, very good. SAS में ratio of two sides and the angle in between them is equal. ठीक है? If ratio of two sides are equal and the angle in between those sides are equal. ठीक है, इनके बियॉन्ड भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके बेस पर वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर. दे आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ दिस क्लास. ठीक है, तो उसमें आपका इफ मीडियंस आर इक्वल, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ मीडियंस आर इक्वल और रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, है ना, बहुत सारी डिफरेंट और वेज हैं, बट विल नॉट गो इन डीप इनटू दैट. सो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ डैश आर इक्वल. corresponding sides are equal. So if I'll say ABC is similar to PQR, then ratio of corresponding sides are equal. What else? Angles are equal. This ratio is equals to what? This ratio is also equals to perimeter. Ratio of area perimeter. of triangle. Area of triangle नहीं क्या बोलेंगे? This Sir, ratio is area of triangle
मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. Side square, but ratio of side is equals to what then? AB अपॉन सर BQ स्क्वायर. मीडियन Okay, यहाँ पर मीडियन भी बोलेंगे, मीडियन, ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड. ठीक है हर्ष, फिर से बताओ बेटा. रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरिया. ठीक है, वेरी गुड. रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इन रेडियस और रेशियो ऑफ सरकम रेडियस. ठीक है, ये सारी रेशियोज जो है ये इक्वल होती हैं. सिर्फ एरिया से रिलेटेड ये ध्यान रखना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज. ओके, नेक्स्ट वन, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्टेट करो भाई, कौन स्टेट कर रहा है? व्हाट इज बीपीटी? No one, not confident. Question is state and prove सर BPT. AP अपॉन BP. Just Sir, AP raise your hand upon beta. PB Harsh, equals- 1 minute है ना? 1 minute है ना? Just raise your hand. So let me ask Saransh first. हाँ जी Saransh. Sir, if a side is parallel to one side of the triangle and If side is parallel to one side of triangle. देखो यहीं if a पे line देखो, is, sir, हाँ, if a line is, sorry. if a line is drawn parallel to one side of a triangle, Yes, sir, and it intersects the other two sides, then it will intersect the other two sides in the same ratio or divide them in the same ratio. okay. So we'll say basic proportionality theorem is if a line is parallel to one side of a triangle intersecting at 2 points, then it will divide the other two sides in the same ratio. ठीक है, if a line is drawn. हाँ जी. सर ये कन्वर्स नहीं होता सर जो आपने बोला? नहीं नहीं, कन्वर्स दूसरा है. ओ ठीक है, बीपीटी क्या है? बीपीटी बोल रही है अगर आपने एक लाइन जो है, इफ यू हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट विल then that line is intersecting the other two sides, then it will divide those two sides in the same ratio. So if this is x, this is y, this is w, this is z, so we'll say that x upon y is w upon z. Done. So this ratio usually we take BPT में AP upon PB is equals to AQ upon QC. But यहाँ पर आप full side भी ले सकते हैं. Full side में मतलब you can take AB also in consideration. So if I'm saying AB upon PB, then this will be equals to correspondingly AC upon QC. Okay, that's also covered in BPT. So BPT का proof I am leaving at present here. ठीक है, anyone and who wants me to take BPT proof? Not comfortable with it? तो ठीक है ना, फिर we'll take the question on triangles. Converse BPT. खुशागरा, अब आप बताओ converse BPT क्या होगा? सर a line which is intersecting sides of two triangles in equal ratio, then it will be parallel to the third side. हाँ, तो यहाँ पर आप बेटा अगर 1 का है तो you are losing half a mark है ना. थोड़ा सा I told before also few things हैं जो आपको by heart करनी पड़ेंगी. ठीक है, so यहाँ पर होगा if a line divides the two sides of triangle in same ratio. अगर एक लाइन जो है two sides of triangle को same ratio में divide कर रही है, then that line will be parallel to third side. ठीक है, that's converse BPT. Okay sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो जी, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम. पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू विच ट्राइंगल. चैट बॉक्स में आप आंसर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल का नाम लिखना है. यू कैन से CDA और यू कैन से ABC. ठीक है, इफ यू आर फाइंडिंग मोर देन 2 triangles, सेंड मोर देन 2 triangles. सो क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल. 1 mark MCQ क्वेश्चन.
सर हाँ जी, हाँ जी, सर मैंने पहले वाले में लास्ट वाला गलत से हाँ गलती से लिख जी, दिया so वो था। मिस्टेक हो गई है ना। एंड फर्स्ट करेक्ट आंसर्स गोes to Humita, impressive, Sachit, and then Saransh, second attempt, okay. ओके, किसी ने भेजा है ABD सिमिलर टू ADB। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, until unless it's a isosceles triangle, तो एक ट्राइंगल अपने ही उसके इक्विवेलेंट कैसे सिमिलर हो सकता है बेटा? किसी ने 4-5 आंसर भेज दिए हैं। ओके प्रांतिक, चेक योर आंसर अगेन। सो करेक्ट आंसर सचेत, सारांश, है ना, हुमिता वाज फर्स्ट वन, and then Prakriti, very good, impressive, Aryan Verma, good, Mridul thoda sa hai na, very small mistake, so Mridul check it again, and I'm looking for some more answers, some more answers. Uday आपका आंसर नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है, you'll have to answer. Kanishka, try it out. एंड श्रेया, माइक पर आ जाओ बेटा जी फटाफट। श्रेया, हाँ जी बेटा, आपने आंसर कौन सा दिया है? ACD, है ना। तो देख लेते हैं ACD, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ABD एंड ACD, है ना, एंगल सेम होने चाहिए हमारे। तो अगर मैं यहाँ पर दूं ACD, आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, पहले तो ये एंगल जो है ये ABD का एंगल था और ये ACD का एंगल है, तो इज दिस एंगल A इक्वल्स टू दिस एंगल A? सर मैंने वो 90 डिग्री वाला लिया था। फिर से ABD किसके सिमिलर है ना, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। तो कौन सा 90 डिग्री आप बोल रहे हैं बेटा? सर वो जो ABD है तो सर उसके उधर जो 90 डिग्री बना हुआ है, तो सर ADB भी तो 90 ही होगा। ABD यू आर सेइंग, हाँ दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। अच्छा, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। सो आप मेरे को आंसर बताएं, आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा? योर आंसर इज कमिंग एज ACD, राइट। सो आप ACD ऐसे लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दिस एंगल शुड बी इक्वल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है, ये मैच करनी चाहिए। सॉरी सर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इट्स ओके। निश्चय, माइक पे आओ। निश्चय, Yes, sir. हाँ जी, आपने ABD को किसके सिमिलर बोला है बेटा? BCE के सिमिलर बोला है ना। सो यू आर सेइंग एंगल A इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। कौन सा बोल रहे हैं आप? ABD सिमिलर टू BC एंड E, तो ये तो 90-90 मैच कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. So 1 minute, BCE, so you are saying this angle is equals to this angle, है ना, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है बेटा, है ना। So you have to first see कि angles कौन से equal मैच कर रहे हैं, ठीक है। So if I am asked to solve this question, so how I'll proceed is, first is the 90 degree, है ना, so this is 90 degrees, so जो भी मेरा ट्राइंगल बनेगा उसमें ये 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड इज दिस एंगल B, if you will see, ये बिल्कुल वाइड ओपन है मार्केट में, तो इस एंगल B के साथ अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और उसके अंदर 90 डिग्री का भी एंगल है, देन आई विल अडेप्ट दैट, ठीक है। तो एंगल B के साथ एक ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल है, दैट इज वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस, राइट। सो इफ दिस एंगल इज x, दिस इज 90, this angle is 90 minus x, same way में this is 90, this is x, so this angle is 90 minus x, so I will say triangle ABD is similar to angle A is equals to C, angle B is equals to B, and this is 90 degrees E.
So triangle ABD is similar to triangle CBE. Okay, sir. Good, good, good. हाँ जी बोलो. सर ए और ए में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सिमिलैरिटी में दो एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा. तो सिमिलैरिटी की कंडीशन इज एक्चुअली ए, टू एंगल शुड बी इक्वल, दैट्स इट. ठीक है बेटा. Okay, if angle BCD is equals to angle BAC, find perimeter of triangle ADE. आपको ADE का perimeter find करना है. तो यहाँ पे आपका पहला टास्क है फाइंड टू सिमिलर ट्रायंगल्स. हाँ जी, फिर से बोलो सचिन. Okay, Saransh has already given an answer which looks incorrect. So Lakshya is saying sir BAC. Lakshya is saying sir BAC is similar to BDC. ठीक है, देख लेते हैं. अगर हम बात करें BAC में, है ना, तो BAC में और इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, दिस ट्राइंगल इफ यू विल टॉक अबाउट, ठीक है. सो एंगल B जो है वो एंगल सर B के इक्वल है. ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल A जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल है. ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. दैट मींस जो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल C है वो छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल है. सो दिस इज D. Impressive, very good. So we have got triangle BAC is similar to triangle BCD. हाँ जी बोलो. सर मैंने गलती से बड़े वाले का भेज दिया था, मैंने दोबारा भेज दिया है. Okay, very good. Let's see. Okay, तो we know that ratio of perimeters है ना, बड़े वाले ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर है, that will be equals to ratio of sides. बट रेशियो ऑफ साइड में छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसकी तो सारी साइड्स गिवन है. बड़े वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड गिवन है हमें? BC. तो बड़े वाले ट्राइंगल की हम साइड BC ले रहे हैं और छोटे वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग? दैट इज BD. सो BC अपॉन BD. ठीक है, just check it again. I'm taking the ratio of perimeters is equals to ratio of sides. Ratio of perimeter, bigger triangle perimeter I don't know, smaller triangle perimeter, yes of course it's 27, is equals to bigger triangle BC is 12, smaller triangle BD is 9. So solving it, perimeter of triangle ABC is coming as 36 centimeter. ठीक है, हमें निकालना लेकिन किसका है? पेरीमीटर ऑफ ADC. सो यू से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADC is 36, that is full triangle,
-9 हमें पूरे ट्रायंगल का गिवन है ना बेटा, तो इस पूरे ट्रायंगल में हम माइनस किसको कर रहे हैं? सबसे पहले हम इसको माइनस कर रहे हैं, पहले हम इसको माइनस कर रहे हैं 9 को, फिर हम इसको माइनस कर रहे हैं 12 को, सो -12, और फिर वापस ऐड किसको करेंगे हम? ये 6 इसको इंक्लूड नहीं किया था हमने, सो +6, सो +6, so this is 36 plus 6 is 42 and 30, answer is 21 centimeter. ठीक है, कॉपी कर लें। तो सारांश, आपने आई थिंक कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक की है, योर आंसर वाज नॉट करेक्ट। So question like this, just be observant. If two angles are given as equal, अगर दो एंगल आपको बेटा इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर ट्राइंगल कितने हैं? 3 ट्राइंगल्स आर देयर, है ना? Then see if any of the angle is common. So we found this angle is common between smaller triangle and bigger triangle, and we have got two equal triangles, and thus similar triangle property we apply. Okay, so I'll post the recording here, so you can watch it in that. Next question. Please go through it. We'll discuss ABCD is trapezium. अगर trapezium है तो parallel sides. So these are the parallel sides. E and F are points on non-parallel sides AD. So these are the points on non-parallel side, respectively, such that EF is parallel to AB. EF अगर AB के parallel है तो of course DE के parallel भी होगा, ठीक है? You have to show that AE into FC is BF into ED. ठीक है बेटा, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई थ्योरम तो हमने आज तक की नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स वी हैव डन थ्योरम्स रिलेटेड टू रेशियो ऑफ द साइड्स। तो पहले इसको थोड़ा रेशियो में कन्वर्ट कर लो। प्रूव हमें ये प्रोडक्ट थोड़ा करना है, प्रूव हमें करना है AE अपॉन क्या ले, दूसरी साइड की जगह हम विल प्रेफर टू टेक ED. So you have to prove AE upon ED is BF upon FC. This is what you have to prove. मैं बताऊं कैसे होगा? अल्लाह जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, बोलो कुशाग्र। सर AC को ज्वाइन कर देंगे, मतलब हम AC बना देंगे। हाँ हाँ जी, कर दिया। हाँ सर, फिर हम सर फिर हम पॉइंट को नाम दे देंगे। हाँ ओके, तो फिर EM और DC पैरेलल है सर, तो AE by ED is equal to AM by MC BPT से। तो फिर सिमिलरली सर दूसरे ट्रायंगल में BF by FC चलो, is equal to I AM by MC। fully got है ना 1 and 2। that कुशाग्र, you are aware of it। ठीक है, इसी क्वेश्चन को CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टार्ट कैसे करोगे? सर गिवन, उसके बाद सर टू प्रूव, ठीक है। सो टू पे प्रूव में construction। यू आर राइटिंग डाउन EE into FC is BF into ED, और तो यहीं पर आप लिख रहे हैं हमें प्रूफ क्या करना है ना, सो उसमें हमें इजी रहेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप? जॉइन AC। ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू इज दे डोंट मेक डायग्राम। तो आपको बेटा प्लीज है ना, ये आपकी शीट जो है CBSE में ऐसे आती है ना, थोड़ा लैंडस्केप के उसमें इंस्टेड ऑफ पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर मेक द डायग्राम, ठीक है। दिस एरिया इज गुड इनफ फॉर मेकिंग द डायग्राम, एंड हियर यू राइट गिवन, टू प्रूव एंड ऑल दैट, ठीक है। नॉट मेकिंग अ डायग्राम इज अ बिग मिस्टेक, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक आप लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप डायग्राम यहाँ बना देते हैं और फिर गिवन यहाँ लिखते हैं, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड प्रूफ। फिर प्रूफ में ना यहीं पर आपकी खिचड़ी बन रही होती है, ये स्पेस आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऑलवेज मेक डायग्राम ऑन राइट साइड कॉर्नर, ठीक है, दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस।
and you have to make diagram. Sir, Diagram need not to be in pencil, you can make it with pen, but थोड़ा सा fair diagram. हाँ जी बोलो. so how much marks does a diagram carry in a 4-mark question? Diagram carries 0 mark. ठीक है, but आप कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं और आपने डायग्राम नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, तो जो टीचर है वो लॉजिकली उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है. देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन टीचर व्हेन ही इज चेकिंग द पेपर कि आप क्या बोल रहे हैं. ठीक है, आपने जो डायग्राम नहीं बनाया तो टीचर ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर लेकर बैठा हुआ है 34th क्वेश्चन, अच्छा इसका डायग्राम जो है वो ये वाला है पेपर में. ही इज ऑलवेज रेफरिंग टू योर डायग्राम व्हेन ही इज चेकिंग द पेपर. ठीक है, तो यू आर बाउंड टू लूज मार्क्स. सीबीएसई की वेटेज के हिसाब से जो है दे हैव नॉट अलॉटेड यू नो एज सच हाफ मार्क और 1 मार्क फॉर डायग्राम. बट अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन ही नहीं है देन द डायग्राम कैरीज 1 मार्क. अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन थी देन डायग्राम कैरीज 0 मार्क्स. ठीक है, बट इन बोथ द केसेस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. सर हाँ जी. वैसे एक और वे से कर सकते हैं. हाँ जी, सर, पहले एक बार इसको एक बार देख लेते हैं. आई विल कम बैक टू यू. ठीक है, हाँ जी, उसके बाद प्रूफ आगे बताओ. यस सर. सर ने कंस्ट्रक्शन में सर एम को भी तो लिखेंगे कि एम मार्क जॉइन पॉइंट, हाँ वेरी गुड, जॉइन एसी. ठीक है, बताओ क्या लिखें फिर. सर मार्क द पॉइंट व्हिच इज नहीं सर Point of Let- impact on EF is हाँ M. जी, लेट एसी इंटरसेक्ट EF एट एम. पॉइंट M. सर ठीक है? फिर हाँ जी. प्रूफ सर इन ट्रायंगल एडीसी इन EM ट्राइंगल is ADC और फिर इसको आप अंडरलाइन करें. हाँ जी बोलो. okay sir. EM is parallel to DC given. As EM is parallel to DC. Yes sir. AE is equal to AE by ED is equal to AM by MC by BPT. AE upon ED is equals to AM upon MC by फिर इन BPT. yes sir. ठीक है, फिर अब यहाँ पर जो है अगर आप में से कोई DPS में है, ठीक है, वहां पर टीचर इज वेरी फिनिकी, इट सेज कि आप BPT पूरी लिखें, बट द थ्योरम इज नो नो नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. BPT में इवन शॉर्ट फॉर्म इज अलाउड. ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट फुल फॉर्म. हाँ जी, तो फिर इन ट्रायंगल ACB मैं मिस कर गई यहाँ पर, इसको आप 1 नेम करेंगे है ना. फिर इन ट्राइंगल ABC. ACB. हाँ Sir, जी, BF by FC is equal to AM by MC by BPT. ओके वेरी गुड. तो फिर सेकंड हाँ जी, हाँ जी, स्टेटमेंट वेरी गुड. BF by FC is equals to AM by MC by BPT and this you name as 2. हाँ जी, आगे. from 1 and 2 AE by ED is equal to BF by FC. ठीक hence है, proved. is equals to this and then he is writing hence proof. Very good, impressive. ठीक है, presentation is equally important. सर हाँ जी, सर वो जनरल डाउट था वो डायग्राम से रिलेटेड. बोलो. सर जो जैसे पिछले साल ट्रायंगल्स का था कंस्ट्रक्शन तो उसमें तो रफ डायग्राम बनाते थे, इस साल तो नहीं बनाना होता ना सर्कुलर्स के उसमें. बेटा कंस्ट्रक्शन में जो रफ डायग्राम है दैट इज फॉर योर ओन गुड सेक है ना. रफ डायग्राम में यू विल बी अवेयर कि आपको प्रोसीड कैसे करना है. ठीक है, बट रफ डायग्राम कैरीज 0 मार्क्स लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो. रफ डायग्राम इज रफ फॉर योर ओन गुड सेक. आप बिना रफ डायग्राम के लास्ट ईयर करते तब भी आपको फुल मार्क्स मिलते, but chances of error reduces if you first make a rough diagram and then proceed. ठीक है सारांश. Yes, sir. अच्छा सॉरी, किसने पूछा था सर क्वेश्चन? 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने. Sir, Aryan. ओके ओके. बेटा 1 मार्क वाले क्वेश्चन में और 2 मार्क्स वाले में है ना, ये गिवन टू प्रूव ये सब नहीं लिखते हैं. और 1 मार्क वाले में डायग्राम अगर रिक्वायर्ड है देन यू मेक इट, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है जहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ेगी. हाँ जी आर्यन, एनी अदर डाउट? Sir, alternative method. नो सर. ओके, हाँ जी, अब आप बोलो सचित, कैसे कह रहे थे आप? सर मैंने AD को प्रोड्यूस करा फॉरवर्ड की तरफ और BC को, तो वो
तो एक पॉइंट पे ट्रायंगल बन मिल गया। ओके सर फिर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाया क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। हाँ जी then PE is equal to PE upon AE is PF upon BF एंड सर फिर दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया PDC तो PE upon ED is PF upon FC तो सर दोनों को इक्वेट करना तो ये ओके वेरी गुड ठीक है। सो व्हाट सचित इज सेइंग इज लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो ही इज सेइंग कि सर कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे extend DA and extend CB so that they meet at point P. Extend DA and CB so that they meet at point P. उसके बाद then he is saying that because these lines are parallel, ये सारी lines parallel हैं, इसीलिए he is applying BPT apply कर रहा है वो। पहले he is applying on triangle PEF में अप्लाई करके so he is getting PE upon PF is equals to AE upon BF ठीक है। फुल साइड हम लेके कर रहे हैं so this upon this is equals to this upon this basic proportionality because these two lines are parallel ठीक है। Second he is taking it in triangle PDC वो triangle PDC में ले रहा है and in triangle PDC he is again saying ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। Now he is talking about triangle PDC so triangle PDC में basic proportionality लगाएंगे so PE upon ED is equals to PF upon FC so PE upon PF is equals to ED upon FC ठीक है। Comparing both of them then these are equal and hence proved. Good, impressive. Check करें anyone any doubt? Okay so let's move ahead. So, हाँ जी बोलो। sir, is it necessary to show the rough work in the exam? No. Only thing is if you have done a little neat rough work then the examiner at times if he is good so he will check कि आपने calculation mistake की है या conceptual mistake की है ठीक है। So that way it can be little helpful to him but that has got 5% chance. Only thing is please make sure आप लोग कुछ क्या करते हैं कि ये आपका sheet है ना so you are solving it here तो कुछ तो solve ऐसे कर रहे हैं solve then they will do 45 into 97 is this and then they are solving and 40 वो rough work यहीं पे करना शुरू कर देते हैं ठीक है। so you are supposed to do rough work only in the corner अगर if you are so habitual है ना last 5 years you are doing same thing can't control you are getting excited or nervous no issues at all just put line across it and write down rough work line across it write down rough work one thing second thing is अगर आपने कुछ solve करते हुए आपने mistake कर दी है ना ये आपने solve किया ये ऐसे solve किया फिर आपसे जो है कुछ mistake हो गई है यहाँ पर है ना ये mistake हो गई है तो आप ऐसे कट करते हैं फिर यहाँ पर ये ऐसे कट करते हैं तो ये पता ही नहीं चल रहा है हमें तो as an examiner I will like you to draw a boundary with pencil ठीक है एक thick pencil लें और उससे ये boundary draw करें now things are very clear to me कि मुझे देखना क्या है what I have to check ठीक है that's one thing another is कुछ students what they do is if they are getting the answer as 9/12 so they will cut this like this and then they are writing it 3/4 है ना। अब इस फिगर को अच्छे से देखो मुझे 3 पैरेलल लाइन नजर आ रही हैं ठीक है सो डोंट डू लाइक दिस प्लीज है ना। आप जब कट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि एग्जामिनर को क्लियरली दिखाई तो दिया हुआ क्या है
सो एक स्लांट लाइन से आप कट करें एंड देन इसको थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ऐसे करके लिख लें, है ना, दैट्स अ बेटर प्रेजेंटेशन। सर और हाँ जी बोलो। सर हमारी मैम ने कहा था कि पेंसिल से काटना है इसे। बेटा मैम ने तो कहा था जब एक्चुअल आप पेपर दे रहे हैं ना और उसमें लास्ट में आपके पास टाइम भी कम है ना, सो मैम ने इसलिए कहा था ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपने पेन से भी कट किया है तो सीबीएसई गाइडलाइन ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि आपको पेंसिल से कट करके करना है, नो, ठीक है। अगर आप स्लांट लाइन से कट कर रहे हैं विद पेन आल्सो इट्स ओके। सर हाँ जी सर बोर्ड के पेपर में सर हम लास्ट पेज में रफ कर सकते हैं ना सर, मतलब हाँ डाल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आप जाते ही सप्लीमेंट मांगो और सप्लीमेंट पे रफ वर्क करो, फिर उसको अटैच कर दो, ठीक है। ओके सर। लास्ट पेज पे रफ वर्क इज लिटिल डेलिकेट ना, आप कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए वापस लास्ट पेज पे जा रहे हैं, फिर लास्ट पेज से कॉपी कर रहे हैं डाटा फर्स्ट पेज पर, तो वहां पर फिर मिस्टेक हो सकती हैं, है ना। प्लस लास्ट में जब आप चेक कर रहे हैं अपना पेपर तो रफ वर्क अगर साइड में ही लिखा हुआ है इट्स इजियर फॉर यू टू रिवाइज। ओके सर। ओके चलो इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, नोट कर लें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स 3 और 4 मार्क क्वेश्चन। Triangle ABC is right angled at C. This is right angled at C. If P is the length of perpendicular from C to AB and ABC have the usual meaning, then usual meaning means जो आपका vertex है बेटा वो हमेशा capital letters में होते हैं और उनके opposite side जो है वो हमेशा small letters में होगा, है ना। Capital letter B is the vertex, small letter b is denoting the side opposite to vertex B. So you have to prove that, आपको prove करना है 1 upon p square is equals to 1 upon a square plus 1 upon b square. हाँ जी, to save time we are not going to write given, to prove, construction if any, है ना, ये हम नहीं लिखेंगे, सीधा proof से start करेंगे। तो proof कौन हेल्प कर रहा है? हाँ जी सात्विक। यस सर। सर सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सर हम लोग के पास दो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, पहला बी हाफ ए इंटू बी और दूसरा हाफ सी इंटू पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो दैट इज हाफ ऑफ बेस, अगर मैं BC ले लूं तो BC इंटू AC, और हाफ ऑफ, अगर मैंने बेस जो है AB लिया है तो हाफ ऑफ AB इंटू, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज M, so this is MC. Therefore half of A into B is half of C into P, ठीक है। Solving this we are getting C is equals to AB upon P. Okay, what next? सर उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/C। 1/C is okay, 1/C is P upon AB. सर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Squaring both sides, so we have got 1 upon C square
is p square upon a square b square. सर उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से उसका एक्सपेंशन लिखेंगे। किसका एक्सपेंशन? सर पी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कैसे लिखेंगे आप? सी स्क्वायर का लिख नहीं सकते हैं। नहीं सर पी स्क्वायर का लिखेंगे, सॉरी। ना ना ना, पी स्क्वायर तो आपको चाहिए प्रूफ में, इतनी मुश्किल से तो पी आया है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या नहीं चाहिए ये बताओ यहाँ पर। सर सी स्क्वायर है ना, सी नहीं चाहिए, तो इस सी को हटाओ। सी को हटाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। ट्राइंगल भी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि 3 ट्राइंगल है, राइट एंगल है ना। अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो पी स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या करेंगे हम बताओ? सर सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, बस पी स्क्वायर को दूसरी साइड और इसको दूसरी साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये वाला हो जाता है ना, तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं। p को नीचे ले गए तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। आगे 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 सर उसके बाद हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड है ना, इतनी मेहनत की है। Impressive, very good. हाँ जी सारांश, you want to say something? No sir, it was for answering. Important question है तो नोट डाउन कर लें। नोट डाउन मीन जस्ट स्क्रिबल डाउन few things है ना, that will proceed with area of triangle and then we'll apply Pythagoras theorem and then we'll simplify it. Done. Next one, ये एरिया पे आ गया है ना। एरिया हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, जो न्यू ज्वाइनर्स हैं बेटा, हमारी विंटर वेकेशंस हैं, दैट इज टिल संडे है ना। संडे तक विंटर वेकेशन है। संडे को बेसिक मैथ्स की क्विज है जिसमें हम 6th 7th 8th 9th के कॉन्सेप्ट्स पर क्विज रखेंगे। एनीवन हु स्कोर फुल, ठीक है, 8 से ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, बट स्टिल एनीवन हु स्कोर फुल विल गेट अ प्राइज। ओके, क्वेश्चन रेडी? ओनली सिमिलर ट्रायंगल पे क्वेश्चंस हैं सर। हाँ जी सर, तो कल एसएसटी क्लास हो गई? एसएसटी क्लास इज देयर है ना। ओके सर। ओके सो एबीसी ट्राइंगल है, उसमें सबसे पहले मैंने आई हैव ड्रॉन अ लाइन एएम such that it's dividing BC in ratio 1:3. Then I have joined BN where N was dividing AM into ratio 3:1. Find, let's say this is P, so you have to find AP upon PC. This is what you have to find. Angle P is 90 degree. हाँ, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, मैंने वैसे ही बना दिया है। एंगल P90 नहीं है, एंगल M90 है, उसको भी हटा दो है ना, आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार नोट कर लें। सो दिस आई विल सॉल्व इट हियर। गिवन इज
BM upon MC is 1/3. And MN upon AN is 1/3. हाँ जी, कौन बता रहा है कंस्ट्रक्शन क्या होगी यहाँ पर? एनीवन? हाँ जी सारांश. Sir, we can draw MP parallel to AB. We can draw. सर पर वो श्योर नहीं है कि पैरेलल होगी कि नहीं. हाँ, and you will not say we'll draw this. We will join MP. Yes, You are sir. saying we'll join MP and it is parallel to AB. Hello, that's not given anywhere. So let's cut this. Okay. Let me take this question. It's an interesting question. So you will draw parallel to BP. You will draw MQ parallel to BP. So construction, draw MQ parallel to BP where Q lies on AC. ठीक है. Okay. Solution. हाँ जी, तो मुझे फटाफट बताओ, देखकर चैट बॉक्स में लिखेंगे. ये पैरेलल है आपस में, ठीक है. इन ट्राइंगल BPC, हाउ मच इज, चलो BM अपॉन MC. BM अपॉन MC किसके इक्वल होगा बेटा? ठीक है, फिर से BM upon MC, this will be equals to what? This will be equals to PQ upon QC. क्यों? क्योंकि टू साइड्स आर पैरेलल, है ना. ये बेस है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है. सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BM upon MC is PQ upon QC, और PQ upon QC is 1/3. That is, if PQ is X, then QC is 3X. ठीक है. अब फटाफट बताओ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना चाह रहा हूं मैं, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लूंगा? विच ट्रायंगल? सर AMC. AMC. AMC में कौन सी साइड के पैरेलल है लाइन बेटा? NP और MQ. AMC में MQ जो है वो तो साइड है ही नहीं. लाइन जो है वो, मैं लाइन की बात करूँ. हाँ, तो लाइन जो है वो साइड के पैरेलल होनी चाहिए ना. तो ट्रायंगल फिर से देखो, ट्रायंगल चेंज करो आप. AMQ, अगर मैं AMQ ले लेता हूं तो बात बन जाएगी. ठीक है, इन ट्रायंगल AMQ. ठीक है, बताओ कौन सी साइड्स की रेशियो इक्वल है? AN upon NM और AN AP upon upon PQ. NM is equals to AP upon PQ. AN upon NM कितना है बेटा? 3/1. AP हमें पता नहीं है, बट PQ कितना है? X. सो AP कितना आ गया हमारे पास? 3X. ठीक है, तो हमें निकालना लेकिन क्या था? We had to find, therefore AP upon PC is X upon X plus 3X, sorry 3X upon this, which is 3/4. Check करें, any doubt? We'll discuss it out.
Done. One student has asked for stats ka basic video, so that I have posted on YouTube. Any other requirement you have related to any chapter, just send me a message. I'll post video for that. Okay. खुशागरा कॉपीड बेटा? यस सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज यहाँ पर हमने जो मिस्टेक की है, ये डायग्राम देखो, है ना, इस पूरे प्रेजेंटेशन में मिस्टेक क्या है बेटा, ये डायग्राम जो है, एक्चुअली दिस डायग्राम शुड हैव बीन ऑन द राइट साइड। अगर ये राइट में होता तो हमारी प्रेजेंटेशन लेफ्ट में बहुत अच्छे से आती, है ना। अभी हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा जिगजैग हेवाई जा रही है, अदरवाइज हम यहीं पर गिवन टू प्रूव और सभी लिखते तो वो एक स्ट्रेट फॉर्म में आती। टाइम उतना ही लग रहा है हमें, ऐसा नहीं है हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट इट वुड हैव बीन अ बेटर प्रेजेंटेशन। ओके आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आया होगा, ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन रहता है टीचर्स के लिए, 2 मार्क्स का। सो डी इज पैरेलल टू AC, DF is parallel to AE. So these lines are parallel and these lines are parallel. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का बनाना है, I'll give one more set of parallel line. बट यहाँ पर दिमाग जो है वो 0 लग रहा है। 0 क्यों लग रहा है? क्योंकि पता है कि ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। कौन से ट्राइंगल लेंगे? वो ट्राइंगल लेंगे जहां पर 2 पैरेलल लाइंस इंक्लूडेड होगी। तो पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ABC वाला, है ना, इसमें ग्रीन कलर की पैरेलल लाइंस इंक्लूडेड है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? जिसमें ब्लू कलर की पैरेलल लाइंस इंक्लूडेड है। सो विल टेक ABE वाला ट्राइंगल। दोनों बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं, अपने आप आंसर आ जाएगा। इफ वन मोर सेट ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन, then you apply basic proportionality in that also. ठीक है, क्लियर है, अप्रोच क्लियर है? ठीक है, ट्राइंगल से रिलेटेड बेटा 2 ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको प्रूविंग जो करना है, वो प्रूविंग वाला पार्ट जो है, ठीक है, उसमें स्क्वायर्स वगैरह आ रहे हैं आपका, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, या फिर पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस के प्रूविंग वाले जो है उसमें स्क्वायर्स में प्रूव करना होता है, प्रूव दैट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और दूसरा, अगर प्रोडक्ट या रेशो की बात है तो वहां पर सिमिलैरिटी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले जो प्रूव करना है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट BF एंड इनटू EC कर रहा है, तो BF इनटू, चलो ये प्रोडक्ट तो हम बाद में भी देख सकते हैं। ओके, दिस इज BF इनटू अपॉन FE कर लेते हैं ना, BF अपॉन FE, और BE भी ले सकते हैं। दिस इज EC, सारी एक ही साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ABC. So in triangle ABC, what I'm getting is BD upon AD is equals to BE upon EC. ठीक है, by basic proportionality theorem. Then in triangle ABE, we are getting same BD upon AD is equals to BF upon FE. ठीक है, 1 and 2 को आप इक्वेट करेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर। इक्वेटिंग 1 and 2 टू गेट आंसर। फिर से चेक कर लें, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट वन।
लक्ष्य आपने बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ डाउट पूछा था. व्हाट वाज योर डाउट? सर वो रिलेशन कैसे आ रहा है? Yes, sir. Okay, let's see here. If two triangles are similar, ठीक है, if two triangles are similar and this is let's say A, B, C and if I'll take this as H, so जो दूसरा triangle है बेटा, ठीक है, ये दोनों triangle similar है, then this side is X into A, ठीक है, how much will be this side? हाँ जी, anyone? बोलो बोलो फटाफट. Sir, X into B. This will be X into B and this one X into C and this side X into X H. into H. X into H. ठीक है, जो रेशो है, रेशो ऑफ साइड इज 1/x. ठीक है, और यू कैन से एवरीथिंग इज बिकमिंग x टाइम्स. अब वो x जो है वो 0.5 होगा तो छोटा हो जाएगा ट्राइंगल, है ना, और 2 और 3 होगा देन ट्राइंगल विल बिकम बिगर. So you will say that all the sides are x times of sides of first triangle. यहाँ पर एरिया कितना होगा? This area is, पहले तो रेशियो ऑफ साइड्स ले लेते हैं. ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स इज 1/x. ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया कितना है? दिस इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. First triangle का area is half of base into height. Second triangle is half of base into height. This is 1/x square. Therefore, which is equals to ratio of side का square. Done. तो इसका प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है, बट इसका यूसेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. बट इसी में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में गिवन है, वेरी कॉमनली आस्क्ड इन 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, उसको भी हम देखेंगे. पहला क्वेश्चन, out of 20 I am expecting 2 wrong answers. If all answers are correct or only one answer is wrong, then the batch is winner. ठीक है, let's see how you are answering. Question is given that triangle ABC is similar to triangle PQR. If AB upon PQ, I'll ask 3 questions, है ना, and all 3 if you have done correctly, then your concepts are very clear. If AB upon PQ is equals to 4/9, find area of triangle ABC. Find area of triangle PQR upon area of triangle ABC. चलो जी, out of 20 replies, at least 2 will be wrong. So Sachit correct, Prantik correct, Saransh correct, Aryan Jangir, thanks for giving me smile. Harsh, your answer is wrong. Kushagra, it's wrong. So 3 wrong. Riddhi, it's wrong. And rest all are correct. Very good. Shreya, आपने वो mistake की है which I was actually looking forward to. Riddhi still wrong. Ashmita, very good, correct. Urja wrong. Laksh wrong. निश्चय 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? Okay, now he has corrected, but I have got half of the answers as wrong. तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है. 4/9 को देखते ही जो है उसका स्क्वायर रूट करने के लिए मत
घुस जाओ, है ना। पहले रिलेशन तो देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर नहीं होगा, ये पी क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर होगा बेटा, विच इज 9/4 का स्क्वायर। ओके, जिनके आंसर्स करेक्ट थे प्लीज रेज योर हैंड। Okay, answers correct थे and they have posted it also on the group. Okay, very good, impressive. So we have got 3, 6, 9 students up for the quiz. ठीक है, easy concept है, क्या mistake होगी देखते हैं if this 9 students can survive till last. Okay, ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा और fun factor add करते हैं. I am adding a time factor also. Okay, so time factor is anyone out of this 6, 7. What happened? ये hands down क्यों हो गए भाई? Ashmita, you can raise your hand. Lianka is 8. Okay, ठीक है. So थोड़ा सा time factor भी होगा. First answer के बाद I'll give you 15 seconds or 20 seconds to reply. Okay, question is same. Triangle ABC is similar to PQR if BC upon PR is √3/√7. Find area of triangle ABC upon area of triangle PQR. जिनका hand raise है, if your answer is coming as wrong, you will put it down. Laksh wrong. Dhriti wrong. Ashmita wrong. Sachit wrong. Anand is first correct answer. Lianka wrong. Amita is second correct answer. Prantik is third. And time is getting up. 5 seconds more. And time up. जिन्होंने आंसर नहीं दिया, they can also put their hands down. Saransh, I'll allow it, है ना? Saransh is in. Rest all, please put your hands down. Okay. यहाँ पर आपने जो मिस किया कि आपने फटाफट सॉल्व करते हुए ये नहीं देखा कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC जो है वो PQR के सिमिलर है, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो PR होनी चाहिए थी. सॉरी, PR नहीं है ना, वो QR होनी चाहिए थी. सो QR शुड हैव बीन गिवन. हमें गिवन क्या होना चाहिए था? BC अपॉन QR ये गिवन होना चाहिए था. BC अपॉन PR, सॉरी, रेशियो होने दो कुछ भी, वी कैन नॉट फाइंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. सो आंसर इज नॉट पॉसिबल, है ना सचित? आपने नॉट पॉसिबल दिया. नॉट पॉसिबल का मतलब है ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना. दोनों में बहुत डिफरेंस है. ओके सर, ठीक है. सो अगर ये QR गिवन होता देन वी कैन फाइंड. ठीक है. सो रेशियो ऑफ एरिया इज, दिस इज BC अपॉन QR का स्क्वायर, है ना. सो दिस इज √3/√7 का स्क्वायर. सो दिस इज 3/7. This would have been answer if instead of PR, QR would have been given. Right, agreed? So 4 students are left. Question. If ratio of area, है ना, same area triangle ABC and all, है ना, ratio of
area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to, let's say, chalo, easy question is equals to 1 minute. चलो इजी क्वेश्चन रखते हैं, इज इक्वल्स टू 2/3, इसको √2 कर लेते हैं, √2/√3, फाइंड AB into BC into CA upon RQ into PR into QP. This is 1 mark question only. No one? Prantik, Sir, can I? put your hands down. Lianka is not there. Hanji, this is no, wrong. Someone is giving answer as 1. I don't know how 1 is coming. 2, 3 answers as 1. Okay, Urja not correct. Let's see who is getting the first correct answer. Very good. It's Aryan Jangid. Congratulations. And Sachit, very good. And now the timer starts for these two students, Saransh and Anand. Harsh, आपका गलत है बेटा. भेज दिया. सारांश ने भेजा. हाँ जी, सारांश, very good, correct. So Anand, 15 seconds. And let's see here. थोड़ा सिस्टमेटिक चलेंगे. खुशागरा माइक पे आओ बेटा एक बार. Yes, चलो sir. लक्ष्य, चलो खुशागरा इज देयर, है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल होगा बेटा? रेशियो ऑफ Ratio of sides. ना रेशियो नहीं, ऑफ साइड. sorry. Square of sides. हाँ, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, है ना. दैट मींस वी कैन से AB अपॉन PQ का स्क्वायर बोल Yes, सकते हैं sir. हम. तो ये किसके इक्वल गिवन था? दिस इज गिवन एज √2 अपॉन √3. Yes, इसका sir. मतलब क्या हो गया हमारे पास? AB अपॉन PQ इज स्क्वायर रूट ऑफ, इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट ऑफ √2 अपॉन √3, है Yes, ना. sir. दिस इज नथिंग बट फोर्थ रूट ऑफ 2/3. ये फोर्थ रूट ऑफ 2/3 हो गया. अगर रेशियो ऑफ वन ऑफ द साइड इज दिस, तो दूसरी साइड की रेशियो क्या होगी? दूसरी साइड BC अपॉन QR अगर हम लेंगे बेटा, ट्राइंगल सिमिलर है, उसके भी यही होगी. सेम होगी. ठीक है. थर्ड रेशियो भी सेम होगी, दैट इज CA अपॉन PR.
दैट विल बी ऑल्सो सेम। अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वी विल गेट व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना? थोड़ा लेफ्ट राइट हो रखा है बट डजंट मैटर, ठीक है? सो वट एवर वी हैव टू फाइंड, ठीक है, दैट इज ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए अपॉन आर क्यू इंटू पी आर इंटू क्यू पी, दिस इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 2/3 into fourth root of 2/3 into fourth root of 2/3। अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, ये एक्सपोनेंट एंड पाथ 7th और 8th में अच्छे से नहीं समझ में आया और भूल भी गए, 2 साल हो गए, है ना? बट you have to have practice of it. This is fourth root of 8/27, that is 2 cube and 3 cube, ठीक है? खुशागरा यूनिट क्या होगी यहाँ पर? सर यूनिट तो नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? यू। खुशागरा क्यों नहीं होगी? लक्ष्य क्या होगी यूनिट बेटा? सर रेशो सर नहीं होगी सर, नहीं होगी, तब भी पता नहीं सर, नहीं होगी। रेशो है ना, रेशो में यूनिट्स नहीं होती हैं, ठीक है? सो नो यूनिट एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, जहां तक बात सीबीएसई की है, ठीक है, सीबीएसई में यहां तक आ सकता है, इफ रेशो ऑफ एरिया इज √2/√3 फाइंड रेशो ऑफ वन ऑफ द साइड, है ना? हमने वन ऑफ द साइड ना लेकर हमने तीनों साइड का प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है? बट अगर ये यहां तक भी आता तब भी हाफ ऑफ द स्टूडेंट हैड डन इट रॉन्ग, ठीक है? आई एब्सोल्युटली फेल टू अंडरस्टैंड, कुछ का स्क्वायर रूट आ रहा है, उन्होंने फोर्थ रूट ही नहीं लिया है, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर एक्सपोनेंट एंड पाथ थोड़ा सा वीक है तो रिवाइज करें, संडे को बेसिक मैथ्स की क्लास है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्विज। चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय सर। बाय बाय।